وہ کافی دیر سے پینل پہ بیٹھا تھا، ہو سکتا ہے جینوئنلی فرسٹریٹ ہو گیا، وہ باری نہیں آ رہی تو وہ بولا، کہتا ہے مجھے جانا ہے تو مجھے 1-2 منٹ دیں۔ تو جماعت ہی کا پہلے آپ کا زیادہ پرومیننٹ میرے ذہن میں نہیں رہے وہ کون تھے بات کر رہے تھے وہ، لیکن ان سے ذرا سینئر شخص تھے جو بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا وہ بات کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے دیں، پھر میں آپ کو کروں گا۔ لیکن وہ نوجوان فرسٹریٹ ہوا پڑا تھا، پھر وہ کوئی 10 سیکنڈ بعد مائک کھول کے پھر کہتا ہے کہ مجھے 1-2 منٹ دیں، مجھے جانا ہے۔ میں نے کہا یار وہ آپ ہی کی بات کر رہے ہیں، آپ ہی کا موقف یہاں پہ چل رہا ہے، ان کو بات کرنے دیں، لیٹ ہم فنش۔ اب جواد صاحب میرا سوال اس سے جو جنریٹ ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی جماعت کی براڈز کے اوپر جاتا ہوں، جیسے ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ نے پیر صاحب کا بھی ریاکشن دیکھا ہے، میرا بھی ریاکشن دیکھا ہے، اسی طرح میں آپ کی جتنی بھی براڈز کے اوپر جاتا ہوں، آئی ایم مائنڈفل کہ میں کس براڈ کے اوپر بیٹھا ہوں اور میں نے کیا نہیں کرنا کہ جس سے کوئی پرووک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ میرا غور سے سن رہے ہیں نا، میرے پوائنٹ اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کیونکہ مجھے بھی سب کچھ کرنا آتا ہے نا، میں بھی جٹ بڑایا چاہاں گاڑا بھی میں کر لینا ہوں، سارا کچھ لوگوں نے سارے نے دیکھا بھی وٹنس ہوئی تھا، ایوری تھنگ آئی نو، آئی کین ڈو اینی تھنگ، لیکن میں کنڈکٹ کس طرح کرنا، the way I am conducting in your broad، کسی بھی تھوڑے براڈ چلانا چاہاں تے I will be observing کہ ایک پیرامیٹرز دے وچ میں کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گل ہن ذہن چ رکھنی ہے تساں۔ وہ جڑا نوجوان ہے نالج از پاور 1-4، جدوں میں وہ دوسری باری بھی انٹرپٹ کرن تے انہوں منع کیتا ہے کہ نہ کر، انٹرپٹ نہ کر گفتگو، انہیں مرزا صاحب تے درود و سلام پڑھیا تے نال ہی وہ ڈراپ کر گیا اپنے آپ کو، درود و سلام پڑھ کے ڈراپ کر گیا۔ جو ہی انہوں نے درود و سلام پڑھیا ہے تے مجاہدین ختم نبوت نے فوراً رسپونڈ کیتا ہے، جڑا کہ پیر صاحب جو ہے ان کر گیا۔ یہ سوال میں کی کرنے لگا، سوال تو غور نہ سننا ہے تو میں نے جواب دینا ہے ریشنلی۔ جدوں مینوں پتا ہے کہ میں تہاڈی براڈ چ آ کے ایسا کام نہیں کرنا کہ جڑا تانوں پرووک کرے تے میرا کسی بھی اکابر تے، حالانکہ میں امام احمد رضا خان دا پیروکار نہیں ہوں اس طرح، یا کسی رشید گنگوئی صاحب دا پیروکار میں نہیں ہوں، یا کسی بھی ہو اس طرح دے ریلیجس ہسٹوریکل پرسنالٹیز، لیکن اس کے باوجود میں کنڈکٹ اس طرح کرنا کہ کسی دی نویں گالی گلوچ دا میں باعث نہ بنا۔ اس مائنڈ سیٹ تو تسی مینوں جواب دیو فار ونس کہ جماعت دے لوگ کیوں پرووک ہو کے اس طرح کردے نے، جدوں کہ انہوں نے 100% پتا ہے کہ مسلمان اس طرح گالی گلوچ نال ریئیکٹ کردے نے، وہ کیوں، مطلب ہے کہ وائی؟ میں تے احمد رضا بریلوی ہون یا رشید احمد گنگوئی ہون یا کوئی طارق جمیل ہوئے یا whoever it is، میں تو انہوں نے گانا نہیں پاؤندا تے اے کیوں اس طرح ریئیکٹ کر کے تے اے مسلمانوں جدوں پرووک کر کے جدوں یقیناً پتا ہے کہ مسلمان اس طرح ریئیکٹ کرے گا، گال کڈے گا۔ دیکھیں اے دے پیچھے کی لاجک ہے، یہ ذرا افضل بھائی، یہ ایک اس کو اگر آپ بالکل حیثیت انسان اس وقت آپ بالکل نیوٹرل ہو کے اگر اس چیز کو سوچیں نا، یہ دیکھیں آپ ایک ایکٹیویزم کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اور صاف لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے گالی نہیں نکالنی، پرووک ہو جاتے ہیں، وہ پرووک ہو کے آپ کے اگینسٹ جو ہے آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کے اگینسٹ ایک پورا تماشا لگاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز ان کے اس ریاکشن کی وجہ سے اپنے اس اچھے کام کو یا اپنی اچھی جو ایکٹیویزم ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے، یا آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں یہ جو چیز ہے ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ سارے پرووک ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں، یہ اصول نہیں
नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिल नजदीक करके सोचें तो आपको बिल्कुल समझ लगेगी कि ये तरीक नहीं, ये चीज कभी हजम नहीं होगी। उसकी रीजन सो फार बड़ा रैशनल जवाब। हाँ, उसकी रीजन अफजल भाई, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो आपका अमल है ना वो जस्टिफाइबल है, कि उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो ओपोनेंट का रिएक्शन है वो 100% अंधे को भी अगर सुनाया जाए, दिखाया जाए, बताया जाए तो वो कहेगा कि वो गलत है। इसी बुनियाद पे आप स्टैंड लेते हैं, राइट। और आप अफजल भाई इसी असूल के तहत, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, इस असूल के तहत आप फर्मली खड़े होने के लिए तैयार हैं और आप ओपनली इन सबको कहते हैं कि भाई ऐसे इस्लाम को मैं नहीं मानता। ये भी आप देखें कि एट द सेम टाइम इसी चीज को करीब करें हमारे, कि मैं अपने अकाबर को, आपके काबर की भी नहीं कोई बात तारीफी कर रहा, किसी की भी बात तारीफी नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा, मतलब कि अपने अकाबर को एक अच्छे अल्फाज से बुलाना चाहता हूँ। अब वो अच्छा अल्फाज अगर आप सिर्फ सुन के आपका रिएक्शन ये है कि आप गालियां निकालेंगे, तो अफजल भाई ये दुनिया के किसी तराजू में भी, दुनिया के किसी तराजू में भी रखेंगे तो ये कभी भी बैलेंस आउट नहीं हो सकेगा। देखें ये मजहब जो है ना, जो इस्लाम है, वो सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके शरीयत को मानने का नाम नहीं है, उसमें रैशनैलिटी भी है, उसमें एक तमीज भी है। यही आपकी जंग है ना इन लोगों के साथ, कि एक अकल भी है कि आप इंसान हैं और अगले को भी आपने इंसान ही समझना है। देखें अगर ये वाला मेयार जो ये पेश कर रहे हैं, अगर ये मेयार हम टेबल को टर्न करें, देखें खूबसूरत मेयार ये होता है कि भले वो काफर भी अपना ले, भले वो कोई दूसरे मजहब वाला भी उसको अपना ले, उसकी जो अपीयरेंस है, उसके जो रिजल्ट है वो बड़े खूबसूरत होने चाहिए। ये होता है अच्छा मेयार, खूबसूरत मेयार। और इस्लाम की हर तालीम जो है वो दुनिया का कोई मजहब, कोई इंसान उसको अगर अपनाएगा उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम दुनिया में ये देखते हैं। अब जो इनका ये मेयार है, जरा देखें कि अगर यही असूल इनकी तरफ लुटाया जाए और कोई और ग्रोह जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सच्चा मानता, वो इन्हीं के असूल को अपना असूल बना ले, तो कैसा डिसबैलेंस क्रिएट होगा। और देखें आपकी अपनी भी एक्टिविज्म यही है कि प्यारे भाई, हमने अगर प्रोग्रेस करनी है तो हमने बद ज़बानी नहीं करनी, और किसी को सलाम भेजना, दरूद भेजना जो है वो बद ज़बानी में नहीं आता, वो किसी भी बुरे अमल में नहीं आता। I hope कि I answered your question in a rational। जी बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। सही मैं पूरी को और मुझे बताएं कि इस शख्स ने ये नबी करीम के बारे में गलत बयानी की है। और अबू मरवान भाई थोड़ा सा ना मैं आप यंग हैं, हम सब में से यंग हैं आप, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ। आपके अंदर एक ख़ास वो पावर आ जाती है, उस पावर को ना बड़ा पॉजिटिव यूज़ करें, और आप अच्छी दलीलें रखते हैं, आप बहुत आला दलीलें रखते हैं, आपका मुतालिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्टार्ट जो है ना थोड़ा सा अगर आप अपने लफ्ज़ों को नरम रखेंगे तो अगले के पास कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं बचेगी भागने के लिए। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਅਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਦਵਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ नबी पाक ने आख्या जिहदा हथ लंबा होएगा, ते ना नबी पाक नूं पता ते ना अज़वाज नूं पता। इस तरह लिखिया है कि जदों सूरा कमर दी आयतां नाज़िल होईयां ते नबी पाक ने फरमाया मैनूं नहीं पता ये पेशगोई कदों आते वे। नबी पाक दी सीरत सारी मसक करन दी कोशिश कीती तुहाडे मिर्ज़ा साहब ने, लेकिन उन्हां दा जिहड़ा कादिर ने दजाल सी मलून, उहने ते नेरी पा छड़िया, ओह ते बड़ा ही लाम ओहदी कबर ते जाके पेशाब ही करना चाहता। इस गल करके ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਵੇਰੀਆ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਇਸ ਗਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਗਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੰਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ खामोश थे। हमने कोई शरारती के अंदर ऐसी बात नहीं की कि कोई ये ना समझे कि शरारत कर रहे हैं। उन्हें पूरा मौका दिया बोलने का। तो उसका फिर क्या नतीजा निकला? और वो अफजल भाई ने सुन लिया सारा जो भी अस्कानी साहब फतवे लगा के फतवे लगा के चले गए। अफजल भाई मैं तो अफजल भाई उसमें किसी ने अंदर ना नहीं बोला, सिर्फ टॉक मास्टर भाई, क्योंकि इसकानी भाई के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो आपस में एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मनाते, तो इसलिए सिर्फ टॉक को वादा शरीक मानने वाला हो। आप समझ रहे हैं ना, यानी मिर्ज़ाइयों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान हों, अकायद ठीक हों और वो कहें कि हम मुसलमान हैं, जुबान से कहें, तो फिर हमें आँख नहीं पहुँचता, हम उन्हें कहें कि वो मुसलमान नहीं है। लेकिन वो मुसलमान ऐसे मुसलमान हैं जो गुमगश्ता राह हो गए, जो वलद्दालीन में से मुझे लगता है हो गए। तो ऐसे लोगों ने उन बाजी के ऊपर कुछ उन्होंने खुल के नाम नहीं बताया, बट हमने मैं वो जानती हूँ जिनका जिक्र जी हाँ, तो उन्होंने कोई बेहुदा बातें की हैं उनके ऊपर। हालांकि वो बाजी तो जस्ट कभी आती है थोड़ी देर के लिए कुछ। अपना कुत्ता कुत्ता है तो साडा कुत्ता टॉमी। छोटा सा काम है आपसे। नसर साहब वो सुन रहे होंगे मेहरान भाई, मरवान भाई वो सुन रहे होंगे। जी जी आप बात करें वो सुन रहे हैं। वो अच्छा खाई होगी उन्होंने। ओके 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 नासर भट्ट भाई, मुझे ना एक वो हवाला वो आप जो उस दिन पढ़ रहे थे ना कि जो तो बस दिगर अंबिया ते सुट सन्ना ए जेड़ा इन्हां दा मौलम है इन्हों मैं हदीस पेश की थी यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते हदीस है, सही हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हराम कीता है जमीन नु अंबिया दे जिस्म खान तो, मिट्टी ते हराम है कि अंबिया दे जिस्म खान। तो कहना नहीं, हम मानते ही नहीं, हमें दिखाएं। आप कानों को हाथ लगाएंगे और कहेंगे कि ये मुसलमान है, यार ये मुसलमान हो ही नहीं सकता यार। किसी की बेटी को, किसी की माँ को, यार एक 60-65 साल का बंदा है यार, इख्तलाफ अपनी जगह पे है यार, झगड़ा अपनी जगह पे, यार उसकी माँ बहन को नंगी गालियां दे रहे हो और ऐसे पार्ट्स का जिक्र कर रहे हो कि यार इंसान सोच भी नहीं सकता। और वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अब ये आप अंदाजा लगाएं कि यार वो नहीं उनके पास क्या देखें, आज हमें समझ लगी है कि उनके पास फतवे हैं इस चीज़ के कि ये जो है इस्लामी तरीका है, तो ठीक है उनको अपने इस्लामी तरीके पे अमल करने दें। जी मियां मंशा भाई रहमतुल्लाह, नीचे मौलवी साहब हम नफर साहब से बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, माइक उन्होंने खोला 2-3 दफा। एक मिनट दें डॉक्टर साहब, मैं तो आपको डॉक्टर साहब को और जवाद भाई को जो है वो बड़ा सियाना आदमी समझता था, मगर जो आप मशवरे दे रहे हैं तो आपको मुझे लगता है कि आप लोग इजमा भूल गए हैं उम्मत का। नहीं इजमा की बात नहीं हो रही, बात तो ये हो रही है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखना 2 दिन बाद फिर इजमा हो जाएगा उम्मत का, वो बोलेंगे हमारे आपसी मसले। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, शर्त लगा ले मुझसे जरा कभी। शर्त लगा ले, क्या मिलेगा? ठीक कह रहे हैं मियां मंशा भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ऐलान दो जवाब भाई, चलो मियां मंशा भाई ने जिस चीज की तरफ पॉइंट आउट किया, ऑब्वियसली ये मुझे और आपको नहीं कुछ कह रहे। आप देखें कि टिकटॉक के ऊपर ये जो वर्ड है ना, ये स्टेटमेंट है, अस्कानी साहब के मुंह से भी सुना कि हम मुसलमान जो हम भाई हैं, हम ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ये इस चीज की डेमोस्ट्रेशन देखी है आपने माशरे के अंदर? माशरा हमारा इस्लामी माशरा देखते हैं ना, अभी वो जो मुझे बात पूरी करने दें। पाकिस्तान के अंदर जो माशरा है
वो दुनिया का खूबसूरत तरीन माशरा होता अगर इस चीज की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते कि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज ये बला है, ये पता नहीं क्या चीज है, ये टिकटॉक पे नहीं नजर आई है कि हाँ हमारा मुसलमान भाई, हम भाई भाई हैं, हम एक दूसरे के लिए गालियां देने का भाई भाई भाईचारा है। आपको पता है ये इजमा है, ये इस चीज में है, हम गैरतमंद हैं। और प्रैक्टिकल जिंदगियों के अंदर ये चीज कहीं नजर ही नहीं आती। माशरे के अंदर आप चले जाएं, बाहर पाकिस्तान के अंदर माशरे के अंदर ये जितने लोग भाई भाई कर रहे होते हैं, इन्हीं के आसपास चले जाएं तो आपको इसकी वर्स्ट स्टेट नजर आएगी, कंडीशन नजर आएगी। तो ये सही बात कर रहे हैं कि बोलने में, कहने में ये इधर इजमा का जिक्र करेंगे कि हम भाई भाई हैं, हम ये हैं, लेकिन बात ये है कि नॉट इन द पॉजिटिव साइड पे अपने सिर्फ उन नेगेटिव चीजों को हाइड करने के लिए, उनको लिबादा बनाने के लिए, इतनी सी बात है। अहमद भाई सॉरी यार, आपको बड़ी देर इंतजार करना पड़ा, कुछ समझ नहीं आ रही किसको उतारे किसको नहीं उतारे, सॉरी। कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो एंजॉय कर रहा था आपकी बातों को, बड़ा मजा आया। शुक्र है कोई तो एंजॉय कर रहा सी। नहीं मैं इसीलिए ऊपर भी नहीं आया, मैं ठीक चल रही है बात, बहुत मुनासिब रही है। बात ये है कि ये मुझे भी तकरीबन टिकटॉक पे 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आसकानी को भी 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, 2 साल तकरीबन हो गया मेरे बाद ही शायद आए। इसी तरह सब भाइयों को जानते हैं। अब बात ये है कि आज ये मसला खड़ा हुआ है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पे आपने दरूद सलाम नहीं भेजना, लेकिन इससे पहले 2 साल ये सब कुछ होता रहा है, इनको नहीं पता चला कि ये चीज गलत है। ना ही उनको पता चला जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के उनके रफ़क़ा थे या उनके दौर में थे और उन्होंने ये एतराज उठाया हो। लेकिन इस बात पे तो इजमा हो चुका है कि ये तमाम अकायद जो बनते हैं ये टिकटॉक पे बनते हैं, और कभी भी आज 1 महीना हुआ है ये हमारे ऊपर वाजे हुआ है कि ये चीज गलत हो रही है। नया एडिशन तकरीबन 125 साल से जो जारी था, यहाँ पे आज टिकटॉक पे हमें आके पता चला कि ये चीजें सब गलत हो रही थी। और आज आसकानी साहब जो दूसरे उन लोगों को गालियां देते हैं जो डड्डू और वो जो टट्टी पता नहीं क्या स्पाई, और उनको आप असल में उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं और बज़ाहिर ये उनके मुखालिफ हैं। ये है फर्क मैंने देखा कि इस टिकटॉक में आने पे कि यहाँ पे कोई एक नया मजहब बना हुआ है जो हर चंद हफ्ते या चंद दिनों के बाद ये तब्दील होता है, उसकी शरीयत भी चेंज हो जाती है और सब कुछ तब्दील हो जाता है। जत्थे बने हुए हैं अल्लाह जी जी ये जज़ाकल्लाह। बात करें ये इसमें खूबसूरती ये है, मौलवी साहब जरा वड़ैच साहब को टाइम दे दें, आपको फिर मौका देते हैं माजरत के साथ। इसमें अहमद साहब खूबसूरती ये है कि हर कोई पूरे इखलास और ईमानदारी से समझ रहा है कि वो सही कर रहा है। यानी पीर साहब ये समझ रहे हैं कि वो डड्डू जड़ा इन्हों गालां दे रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, वो समझ रहा है कि मैं बिल्कुल इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं और मैं खत्म नबूवत बजाय रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। पीर साहब इधर जो गालियां दे के गए हैं वो समझते हैं कि वो बिल्कुल इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, वो बारक कर रहे हैं। Isn't it quite astonishing? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये जो पीर साहब कह रहे हैं ना अहमद साहब, ये पिछले 10 साल से हैं, इनको मसला नहीं बना। वाक़यातन ये अपने नज़रियात जो है ना वो इधर ही बनाते हैं और ये एक नए फिरके बने हुए हैं। हर फिरके का अपना एक कोई फिरका सीकरिया है, कोई नज़ीरिया है, कोई अस्कानी है फिरका, और वो शायद डड्डू भी फिरका ही है। ये खुद कुछ अर्सा पहले इन्होंने ये बात तस्लीम की, बल्कि दलील दी थी कि ये जो अलैहिस्सलाम है ये ज़रूरी नहीं कि नबी के लिए इस्तेमाल हो, गैर नबी के लिए भी इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है किसी गैर अहमदी ने इतराज़ किया था कि आप मिर्ज़ा साहब के नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगा सकते, तो उसके हक में ये दलील दे रहे थे। बाद में जब पब्लिक प्रेशर पड़ता है, ऊपर पड़ता है, तो ये के नजरियात बदल जाते हैं। लेकिन ये खुद तस्लीम करते हैं कि गैर नबी के लिए ये जो अलैहिस्सलाम है बेशक इसके लिए जरूरी नहीं कि नबी का दावा होना जरूरी है।
जब ये कहते हैं ना कि ला सलाम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आप एक नबी साबित कर रहे हैं, और इसलिए हमें ये इनके अपने अकीदे के खिलाफ है। बाद में ये बदल गए हैं। दूसरी वड़ाई साहब इतनी 1.5 अरब आबादी हैं मिर्जाई, बहुत मुसलमान हड़बड़ा का दावा गए करते हैं, हैं, बजाय इसके कि हमसे सुनकर जाके वो कहता है कल उनको चैटमिशन कहता है हमें वहाँ से ना नहीं कुछ पता, हमने लोग कभी 5-10 खोल सीट के ढूंढ के किताब लाए देखी। शेख साहब जिनमें अकलियत पसंदी हो, वो चट मशीन जो कहता है कि रैशनैलिटी मैं के नहीं साथ कदे अपनी किताबां खोल बात के कर देखियां। सकते लामा साहब कहंदे ने हैं। रात को भी जो मैंने कि आपके ग्रुप में वो बात आए सी की, ज़मीन दे कागज़ां ते बिल्कुल दस्तखत कराना एक मुख्तलिफ बात थी। मैंने हकायक रखे गुरु थे, ने उन्हें उसके कोई जवाब रिश्ता में जो मांग लिया। दलाइल देना शुरू हो गए और मेरी तरफ भाई बातें रिश्ता करना मांग शुरू लेना कर भी दी। ना मैंने वो कहना की, जुर्म कोई नहीं, रिश्ता ना ही जिदा उनका मर्जी कोई मंगदा, लिंक था, भावें झोली च कढाण वाली लेकिन ਨੂੰ क्योंकि चुक के गालियां ਉਹਦਾ रिश्ता निकालनी पिया होती मंगे। हैं, उन्होंने गालियां भी निकाली हैं, आपको पता है? मेरा एतराज सिर्फ ये है कि वो आया जी, सी मुझे ज़मीन दे वो कागज़ां बिलाल ते हनीफ ने दस्तखत गंदी गालियां दी हैं। ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਰੂਤ वो बड़ा देता साहब है रोड रोज पे देता नीचे है। बैठा सुन रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो पहली दफा नहीं, वो रोज देता है, लेकिन उसकी बंदा ਮੈਨੂੰ क्या ਆਪਣੀ के बेटी ਦਾ रिश्ता अब दे। इनको शादौला ना कहें तो और क्या ਇਹਨੂੰ कहें। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ बात कराची की करें तो वो कहते हैं काबुल में बारिश हो रही है। भाई बात कराची की करें ना, तो इसलिए उनसे दो टोक बात तो की जा सकती ही नहीं, और जो बातें मेरी तरफ मंसूब कर रहा था वो मैंने की नहीं थी। बहरहाल मौलवी साहब मैं एक इसमें ना बात एक चीज मैं ऐड कर करूं। देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है, अफजल भाई को बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। इसमें थोड़ी सी एडवाइस मेरी भी शामिल कर दें। जो आपने अकलियत पसंदी की बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है अफजल भाई। वो बंदे ढूंढिएगा अकलियत पसंद जो ये समझे कि अकलियत पसंदी से उनके अपने मजहब को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग समझते हैं कि किसी भी अपने मुखालिफ जो है उसकी कोई अच्छी बात को भी पॉइंट करना गुनाह कबीरा। समझ रहे हैं मेरी बात? हम मिसाल के तौर पे देखें, मैं आप इख्तिलाफ रखते हैं, मजहबी इख्तिलाफ रखते हैं, ठीक है, मेरे आपके बड़े डिफरेंस हैं, फर्क है। हम उससे बात करेंगे, हम बात करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, जब चाहे करें। लेकिन अफजल भाई हैसियत इंसान जो मैं और आप ये दुनिया कॉमन ग्राउंड पे शेयर कर रहे हैं, ये रिश्ते, ये रिलेशनशिप, ये ताल्लुक, उसके अंदर आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर मैं इस चीज को एडमायर करूंगा और इस चीज को एडमायर करने की वजह से मेरे पर फतवा लगता है, तो मुझे ऐसे साथी नहीं चाहिए। एक सवाल ज़िमनी सवाल समझ रहे हैं, जिनका मजहब इस खतरे में आ जाए कि मैं अफजल भाई को अच्छा कह दूं। कि बिल्कुल बहुत बहुत कमाल दी ते गल जी कल हुई सी ਤੁਹਾਡੇ और उस वक्त सुल्तान ਤੁਹਾਡੇ डिस्को के दरमियान और जो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश की जिस तरह वो अगे मैं रिपीट कर चुका ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ स्पेसिफिक ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ सवाल मैंने ये किया गया कि तू ये कोशिश कर रहे हैं कि जवाद साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तू सुल्तान दे मुतलका जेड़ा मौकफ है ओदे ते कॉमन पॉइंट ते आ जान तेरे नाल। मैं क्या बिल्कुल कहते हैं तू ये तस्वर किस तरह कर रहे हैं कि जवाद साहब जिन्हां अकायद नूं फॉलो करदे ने उन्हां अकायद नूं फॉलो करदियां होया वो तेरी गल दे उत्ते आ जाणगे। अच्छा हुण मैं ओदा अमली नमूना जो पेश किया मैं क्या ओदे वास्ते मेरे कोल एविडेंस यानी मेरे कोल पहले दी गवाही या दलील मौजूद है। भाई जी की दलील मौजूद है? वो मैं उन्होंने मिसाल दी थी मैं क्या कि जवाद साहब नाल जिहड़ी मेरी पहली मुलाकात हुई सी किसी बराड़ दे उत्ते जवाद साहब तुहानू तो शायद भुल गए नहीं लेकिन मैनू चंगी तरह याद मुझे याद है अफजल भाई बहुत ज्यादा और इन्ने एक सख्त और हॉस्टल कन्वर्सेशन सी कि जवाद साहब दे जे मैं सामने हुंदा ते मेनू गले में फड़ लेना सी जवाद साहब ने। इस लेवल दी मेरी इन्हां दी कन्वर्सेशन होती है तलख। दूसरी फिर मेरा इन्हां दा आमना सामना होया वो भी तकरीबन तलख ही सी उसे तरह। इस तो बाद मेरा इन्हां दा मुख्तलिफ ब्राड्स दे उत्ते इंटरैक्शन थोड़ा बहुत हुंदा रहा एक्सपोजर। अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम इवेंचुअली जदों असी एक दूजे नाल ज्यादा कन्वर्सेशन कीती है एक दूजे नूं ज्यादा असी अंडरस्टैंड कीता है ये कौन ने मैं कौन हां ये मैनूं अंडरस्टैंड कर गए मैं इन्हां नूं ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਸਟਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਢਾਈ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਾਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ
जिसके साथ निकाह ज़मीन के लॉजिक रो ने इसकी वजाहत कर दी हुई है मुजद्दिद आज़म मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो लंबी चौड़ी तफसीर है, मैं नहीं कर सकता। जैसे आप लोग इतना कुछ निकाल के पढ़ लेते हो सीरतुल महदी को रोजाना सुबह उठ के पहले मैंने दे दी आपको मुजद्दिद आज़म की जिल्द 3 में 178 आई थिंक। मेरा थोड़ा सा डाउन करें और अपने वेबसाइट दी थी और वो इना इस लेवल पे इस वक्त है कि मैं इस वक्त कैटेगोरिकली डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जवाद और मेरे दरमियान एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप है। और वर्किंग रिलेशनशिप तो मुराद ये है कि ਅਸੀਂ अकायद लाहौरी अहमदिया मूवमेंट इस्लाम को भी और मैं समझना कि आइडियल इंटरेक्शन है दो मुखालिफ साइड ऑफ यानी आई रिस्पेक्ट वेरी मच। मैं कल जो अल्फाज कैसे मैं आई रिस्पेक्ट ये नौजवान है। एक मिनट साइट खुली रिलीजियस लाइब्रेरी में चलते हैं। 2-3 साइट्स हैं आपकी रेसिप्रोकेट द सेम। हमारी मेन तो एक ही है, लेकिन दूसरी यूके वगैरह से बिल्कुल क्या नाम है दोबारा देख मादर में से जो गाली है साइट का नाम है AAIL। इंसान एक इंसान मैं बोलना चाहता हूं मैं उन्हें क्या कि अगर मेरे और जवाज के दरमियान एक इंसानी रवैये ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ लिटरेचर ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕਾਇਦ और ख्यालात तक कोई नाम क्या था? मुजद्दिद आज़म था या मुबल्लिग आज़म था? मुजद्दिद आज़म है, डॉक्टर बशारत अहमद के उसमें होंगी 3 में। अगर आप खोलेंगे वो किताब उसका जो सब्र तो करना भाई, एक मिनट खोलने तो दे जनाब। भाई खोलने मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तीसरी जिल्द खोल रहे हैं, मेरे ब्रेन में शायद 178 पे से है, अगर दुरुस्त ना हो तो आप इंडेक्स में एक मिनट खोलने तो दे, पहले मुझे मिल तो जाए मुजद्दिद आज़म कि एग्जांपल खुतबा महमूदी अली कि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲकुल ठोक बजा के कह रहा हूं अकायद के इख्तिलाफात के बावजूद मौलाना सदरुद्दीन डॉक्टर बशारत अहमद का नाम से डॉक्टर नहीं बशारत अहमद लिखा होगा। बड़ा ग्रेशियसली अल्लाह बख्श बशारत अहमद डॉक्टर बशारत अहमदिया मुजद्दिद आज़म बड़ी मुश्किल है आपके बुक्स ढूंढना इसके बाद थोड़ा सा अहमदी से मुश्किल तो कोई नहीं है, सीधे बंदे के नाम पे जो किताब है उसको क्लिक करो, खुल जाती है। क्या नहीं खुलती नहीं है? सफर नंबर कितना बताया? सफर नंबर कितना? मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, वरना इसकी जो तीसरी जिल्द आपने खोली है। ठीक हो गया जनाब, बता दें जो याद है वो बता दें। मेरा ख्याल है 178 है, समथिंग लाइक दैट। ना हो तो फिर आपको इंडेक्स में देखना पड़ेगा, इंडेक्स में लिखा हुआ है मम्मी बेगम का। इंडेक्स में लिखा हुआ? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अगर ये ना हो तो फिर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा। हज़रत मिर्ज़ा साहब का दावत तबलीग से कबल मुसलमानों की हालत। हज़रत मिर्ज़ा साहब इशात इस्लाम मदर ट्रैफिक कुरान हज़रत मोहम्मद। प्रिंटिंग अच्छी नहीं आती। They dance with his beauty. पता नहीं जी, आपकी तरफ अच्छी नहीं। Teach her to हमारी dance. जो ओरिजिनल किताबें हैं ना, उसी तरह वो उनको स्कैन किया हुआ है। हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहब मुसलमानों के सामने नसीब हैं इलाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम। दज्जाल की शनाख्त एक खास आदमी से। कौन दज्जाल? आपको पता नहीं यहाँ पर कोई मसला कुछ और चल रहा है, सीरियस किस्म की बात चल रही है। मैं बेशक नीचे उतार दे, मैं नीचे भी नहीं है ना, बैठ पे कोई जवाब देने वाला है ही नहीं है। भाई साहब ये डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रही। मेरे भाई आई अंडरस्टैंड कि आपका ये पैशन की बात हो रही है बैश भाई, बड़ा मौजू है, लेकिन ऐसा भी थे मौजू चल नहीं ना रहा। बैश साहब अंडरस्टैंड करो। किसी और लाइफ में ये क्वेश्चन करूंगा, ये
कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा बैश भाई, माजरत के साथ कोई मसला ही नहीं, जब दिल करे कर लीजिए, लेकिन आज समझने के लिए अपनी ज़ुबान पढ़ना अंग्रेजी में चले जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शेख साहब जिन्ना जोर लवान लगे वैसे वो शेख साहब को सबने सवाल किया शेख ਸੀ साहब ਸਭ क्यों ਤੋਂ नहीं ਪੁਰਾਣੇ कहते ਮੇਰੇ भी ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਅਬਦਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਿਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਦਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਡੀਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਲ ਤੇ ਦਾਲ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਵੜੈਜ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਡੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੜੈਜ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੜੈਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਥਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੜੈਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੜੈਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਲਾਇਆ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਾਰਟ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਜੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਲਾਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਐਸੀ ਮੈਂ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿਆ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਗਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ 59.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਤਬਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਲਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਲੱਗੇਗਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਕਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਲ ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਉਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦਾ ਫਲਾਣ ਕੋਈ 10 ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ ਐਨ ਇਸਲਾਮ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾ ਗਏ ਨੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਰਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮਾਤੀਆਂ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਗਏ ਮੈਂ ਜਨਾਬ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ आलमदीन फतवे के मुताबिक बिलाल भाई अच्छा बिलाल साहब कमालत इस्लाम खोल के एक तो अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों मैं इस वास्ते भी गल की राज साहब मेरी बराड़ के उत्ते अज एक मशहूर फितना शार्प शूटर ने मैनू कॉल की व्हाट्सएप पे आंदा कि मैं मरजाइयां दी बराड़ ते गया ते उत्थे मैं कुरान दा कोई हवाला दिता है ते उन्हां मैनू गालां कढियां ने ते तेरा जेड़ा दोस्त है ना पाकिस्तान भाई उत्थे मौजूद सी ते उस कोई इंटरव्यू नहीं कीता ते तू पाकिस्तान भाई होने पहली गल ते कि पाकिस्तान भाई मेरा पुत्र नहीं कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪਾਗਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਉਹ 59.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ WhatsApp ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ WhatsApp ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਮ ਵਾਲਾ दो बारी कॉल डायल की है रेको है कॉल आंसर नहीं हुई आज पाकिस्तान भाई मेरी ब्राड पे आया उन्होंने मैं तो कॉल सॉरी मिस कॉल आई सब सॉरी मैं उस वक्त से गया शावर शार्प शूटर नहीं थे तो मेरी ब्राड पे आया सब बोले पाकिस्तान भाई ने मैं कहा यार सेट वो आ गया बेचारा वो शार्प शूटर ने केस ले वो खैर मामला है कि थले गाल कट रहा सी शार्प शूटर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ कि जब तू गाना काट रहा है गाना वैसे भी ना काट क्योंकि मेरी ब्राड गाना मेरा एक नैरेटिव है कि मैं गाने काट मैं नहीं करता क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जाइए कि शुरू होया जनाब जिथे जख्मी आंदे ने या ते ओदा एंड अप होया कि शार्प शूटर साहब एक बैकअप किसी उराइट पे आके मैं उन्होंने 7-8 बारी माइक से रिमूव किया है मेरे बाप ने उन्होंने माइक से लेके उन्होंने पर आईडी फोन मेरी ब्राड को टैग कर और टैग करके वो माइक से रिमूव नहीं हो रहा है वो गाली गलौज कर रहे हैं मैं फिर ब्राड क्रैश कर बराड़ क्रैश की थी शार्प शूटर साहब ने जाके मेरे खिलाफ गाला की बराड़ ला दी उत्थे गाली बाज बोल के आए ने उत्थे सैमीनार होया ते सैमीनार दे विच यही साइन किया गया कि ये वो दिन इस्लाम है आज अब्दुल रहमान साहब जेड़ा मैनू नहीं किसी पढ़ाया 8.5 साल कोई बच्चा दस देगा या हो सकता है कमेटी मैं एक बराड़ दे उत्ते ये भी पढ़ना शुरू करता है पीर असकानी साहब फतवा भी दे गए ने कि गाल दा जवाब गाल करना जेड़ा है वो है नहीं चाहे कितनी भी गलीज गाल क्यों अच्छा सुनो इब्राहिम साहब वो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ
ਉਲਮਾ ਕਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਟਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਾੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਔਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं ऑन रिकॉर्ड और वो मैंने लसन ने दस दियो कि मैं विशाल को क्लास करता आज परमानेंट, बाकी 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। लेकिन थल्ले कोई दोस्त लिखने लगा, खतरा मैनू ये पै गया, थल्ले कोई बार बार लिखी जा रहा है कि राजा साहब ने बड़ा साहब का आसान व्हाट्सएप पे हैक कर लिया और तुसा इन्हां नूं जिहड़ी ईसा अलैहि सलाम वाली दलील दित्ती सी वो मेरे बाप नूं पता सी। इस गल तो मैं डर गया। थल्ले थल्ले तुसीं पढ़ो, वाकई ये गल लिखी है विच इज लिटिल शॉकिंग फॉर मी कि उन्हें लिखे है कि थल्ला लिखे है कि आपने जो इसको ईसा अलैहिस्सलाम वाली दलील बताई वो मेरे बाप को इसका पता था, इसने आपको बताया कि मेरे बाप को पहले से पता नहीं सुनी ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ तुम माइक तो रूम कर दिया मैं तो क्यों मानना ये अच्छे लफ्ज़ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसीलिए किए जा सकती है इसका पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो दूसरी गल है कि अगर कोई हरामजादा है ते बयान हकीकत है, क्या मिर्जा साहब ने लोगों को हरामजादा और खंजीर वगैरह नहीं किया? खंजीर सिर्फ लोगों को खंजीर नहीं किया बकौल मिर्जा साहब ने? ये तो इस चीज का वो ज़नीम तो कुरान में भी कहा गया है, लेकिन जैसे कहा गया कि कुरान में तो फिर वो पता क्या था, वो फौरन कह देते देखो ये कह रहे हैं शायद कर रहे हैं कुरान की कि कुरान में गाली लिखी है। अब कुरान में भाई मिर्जा साहब ने ज़नीम लिखा है तो ज़नीम का मतलब क्या है? नेक आदमी। मेरी गल सुनो, मैं अपनी गल की दलील मिर्जा साहब की किताब च दित्ती है ते तुसीं मिर्जा साहब की दलील देण टुर पे। मैं तो मिर्जा साहब की दलील मंगी है भी मिर्जा साहब ने क्यों आख्या है। जे मिर्जा साहब ने अपने मुखालफां नूं खंजीर आख्या है, हरामजादा आख्या है ते मिर्जा साहब ठीक आख्या है, चंगा कीता नहीं आख्या ना, सानू भी आख्या ना, आखण बस इन्नी गल है। मैं कोई दलील मंगा तो फिर तुसीं आखो ना कुरान च लिखा तो फलानी जगह है, मैं तो दलील ही मंगी है। जो भाई साहब से कहते कि मैं क्यों कहते नहीं मैं गवाही देना कि अमन अजीज साहब कदी गाल नहीं कटी ते मैं पूछे कि नहीं कटी दसो केड़ी गाल कटी क्या गाल है हरामजादा बस गाल है। ये मैं चाहता सा मैनू आज पता लग गया कि हरामजादा भावें मिर्जा साहब ने किया है, भावें ज़मीन किया गया कुरान है, भावें मैं कहां भावें तुसीं कहां कि एक अच्छा लफ्ज़ है एक बुरा लफ्ज़ नहीं। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ख्याल च मिर्जा साहब ने बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल कीते किताबां च? भाई मैंने तो एक बात की है कि ये अच्छा लफ्ज़ गाली है, ये जो भी है ये किसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब एक वो मतलब इसका ठीक नहीं है। कहते किसको है हरामजादा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? लेकिन ये आप अगर आप फिजिकली हरामजादा पूछे तो वो किसको कहते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो किसको कहते हैं। नहीं आपको नहीं पता जैसे कि हरामजादा किसको कहते हैं या हरामजादा। तो ये पता है जो बंदा सीधी राह पे ना चले ना वो हरामजादा होता है। चलो ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। जो उल्टी राह पे चलेगा तो वो हरामजादा ही होगा। नहीं अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए मिर्जा साहब ने शेख साहब किताबों में। आमन अजीज साहब मैंने एक बात की, अब आप क्या चाहते क्या वो मुझे बता दें कि मैं कहूँगी नहीं मिर्जा साहब ने गालियाँ की, मिर्जा साहब दुश्मन तराजी करते थे। नहीं अगर आपको नहीं तो फिर आपको वहाँ ये भी मानना पड़ेगा कि कुरान में भी गाली लिखी हुई है। शेख साहब ये मत कहें कि हमारे कुरान में गाली शेख साहब लिखी है कुरान में। शेख साहब
ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੋਣਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਸਮ ਦੀ, ਇਸ ਵਸਲ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, گال ماں بہن دی پھر وہ گفتگو نہیں ہوگی. ابھی اگر میں غلط کیتا میں کہہ کے بڑائی صاحب ہیں, رجا صاحب ہیں, اچھے دوست ہیں یار, چلو ان سے کل میری اچھی گفتگو ہوئی ہے, چلو تھوڑا خیال کر کے میں حرامزادہ کما کیوں گال ہے تو مرزا صاحب حرامزادہ کمن کسی نے وہ گال نہیں. میں اس کو پھر اپنا اظہار خیال نہیں سمجھتا, میں اس کو اپنی سچ بولو جو میری فطرت میں شرشت میں نہیں ہے. آخر مرنا ایک دن, آخر ایک دن رب کے سامنے جانا. گل صاف کرو, بندہ اپنی سوچ کا مالک ہے. دراصل مسعود بھائی ذرا کوئی بات ہے مسعود صاحب تھوڑا بڑھتا کیا ہے اصلی گل ہے کہ جڑا بندہ سچ بولدا ہوئے گا ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੇ کہ انہوں کسی اور طریقے کبھی بھی ان چیزوں کا قائل نہیں رہا. بے جا بے وقت بے ربط گفتگو, بے جا تنقید تنقیس, نقص نکالنے, عیب نکالنے, بے مقصد گفتگو, یہ کبھی بھی اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا, فضول گفتگو ہوتی ہے. اس سے اجتناب ہر بندے کو کرنا چاہیے. رہا یہ کہ گالی گلوچ اور یہ چیزیں, میں اس سے بالکل قطع نظر کہ کون کیا کرتا ہے حقیقت سے منہ نہیں چھپایا جا سکتا. اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ مسلمان لوگ ہمارے جو دوست ہیں گالی نہیں دیتے, تو یہ میں اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہوں. وہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے والی بات ہے کبوتر کی, وہ مجھ سے ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر یہ میں سوچتا ہوں تو یہی میں اپنے جو ہمارے مد مقابل جو دوست ہیں, یہ ہمارے جو رفیق ہیں, ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ ہم جب اس طرح کی گفتگو کریں نا تو پھر دونوں سائڈز کو برابر میں توازن میں رکھ کے گفتگو کریں. آپ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کوئی سن رہا تھا, کوئی دوست, مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس دوست نے بات کی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس پہ شرط لگا سکتا ہوں یا کوئی اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی کہ احمدی گالی نہیں دیتا. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, یہاں بہت سارے آپ کو اس بات کے شاعر مل جائیں گے کہ ایک احمدی دوست جماعت کے وہ آواز آنی مجھے بند ہو گئی ہے. حاجی صاحب نو شاید کال وج گئی. حاجی صاحب دی آئی ڈی ہیک کر لی. آدم سے ناراض اب تو بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے. لیکن آپ ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں کہ جن کی اتنی پروفائل بڑھ چکی ہے کہ وہ ان کی آپ کو ہیک کرنا پڑے انہیں, تو یہ آپ کی کامیابی ہے. بہرحال میں دوسرا یہ ایک سوال کا جواب دے دیں گے. جی جی, میں نا ایک بندہ نیچے آیا ہوا ہے, تو میں پہلے تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے نا, اس کے اندر کوئی عقل ہے, شعور ہے, کوئی اچھی فیملی سے ہے. لاسٹ ویک عامر نذیر اور یہ نیچے بندہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے,
इन्होंने एक ऑडियो तैयार की है प्यारे हजूर की। अब मैं इनसे ये पूछता हूँ, बेवकूफ़ो, क्या हम प्यारे हजूर के खुतबात नहीं सुनते? क्या हमें पता है कि वो ऐसी बात कर सकते हैं? और भाई मुल्कों के बादशाहों का नाम वो अपने मुंह से नहीं लेते, तुम लोगों का नाम अपने मुंह से लेंगे वो। शेख साहब, इसको आप देखते जाए, ये चीजें हमारे लिए तकवीयत का बायस ही बनती हैं। आप फिक्र ना करें। नहीं, मैं फिक्र नहीं करता। जो शऊर रखते हैं, इससे अभी बहुत बढ़ जाएगा काम। ये तो अभी इब्तदाई सतह पे है, इससे बढ़ जाएगा। लेकिन ये हकीकत में ये हमारे पैगाम को आगे बढ़ाने का मौजब बन रहे हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इन चीजों को होने दें। आपके कहने से ये रुक नहीं जाएंगी, लेकिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जमात अहमदिया के खिलाफ। तो ये इनकी अपनी नाकामी का सबूत आप पेश कर रहे हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिक्र ना करें, ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो इससे ज्यादा की भी तवक्को रखें, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इससे रिफाइन होती जाएगी, इसमें मजीद तब्दीलियां आएंगी और हकीकत और झूठ को अलहदा करना उतना मुश्किल होता चला जाएगा और हकीकत को पहचानना मोमन की निशानी है। लेकिन एक शऊर वाले इंसान को ये लाजमी एक सोचने का मौका फराहम करेंगी कि ये हो क्या रहा है। अहमद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। मेरा कहने का ये मतलब है अहमद भाई कि हमें तो और यकीन और हमारा ईमान तो और मजबूत होता जा रहा है इस बात से कि यार ये लोग अपने आप को उसी मुंह से कलमा पढ़ रहे हैं और उसी मुंह से हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, और खुद की तैयार की हुई ऑडियो पर वो बंदा नीचे बैठा हुआ बड़ा बेशर्मी के साथ सुन रहा है। और मैं सिर्फ उसको ये बताना चाहता हूँ कि भाई तुम इस्लाम के नाम पर सारा दिन ब्रॉड लगाते हो, लेकिन ये जो तुम हरकतें करते हो, जिन जिन लोगों को, जिन जिन मुसलमानों को ये पता चलेगा तो वो क्या क्या तुम पर एतमाद करेंगी। होती है जोर लगा के ये काम करो प्यारे भाइयों, और गालियां दो और ऑडियो तैयार करो और बकवास करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्यारे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशी के साथ करो, हम मेरी तरफ से आपको इजाजत है। ये मेरे जो दो चार भाई गुस्सा करते हैं ना, मैं उनको हमेशा ये बात करता हूँ, प्यारे भाइयों इनको गालियां निकालने दो। ये किस कदर तक गालियां निकालेंगे, किस हद तक गालियां निकालेंगे। एक दिन ये गालियां निकालते निकालते ये जरूर सोचेंगे कि यार हमने अपनी जिंदगी तो खत्म कर दी, लेकिन अहमदियत को कुछ ना हो सका। तो प्यारे भाइयों जनाब लगे रहें, आपको इजाजत है मेरी तरफ से। आमर नजीर साहब को मेरा पैगाम दे के एक और ऑडियो तैयार करें और लोगों को सुनवाएं ब्राड पर बैठकर, और हंसी टट्टा भी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब, खुशी से करें आप। चले, मैं दूसरी बात ये करना चाहता था, कोई बात नहीं कर रहा इस सिलसिले में। तो वड़ाई साहब की थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं इनमें असल में अपनी मिसाल दे के कहता हूँ, ये हमने कोई नहीं सोचना नहीं, हमने सोच रही है कि अगर मैं राजा साहब आपको निकालना इसलिए पड़ेगा कि आप अपनी चॉइस से अहमदी हुए, लेकिन मैं क्योंकि शामिल हूँ और भी दोस्त यहाँ पे शामिल हैं, हम अल्लाह ताला के फजल से हम पे अल्लाह का फजल हुआ है, हम उस घराने में पैदा हुए जहाँ पे जमात अहमदिया की अकायद और नहीं ते अहमद भाई ਜਿਹੜੇ शामिल होए ने ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन वड़ाई साहब च अपने आप ਨੂੰ देखना, यकीन करो मैं अपना ज़हनी लेवल या उस तरह की गल सोचते हुए मैं सोचना वा कि अगर मैं किसी गैर अहमदी खानदान च पैदा होया हुंदा तो यकीनन अज मेरी हालत वड़ाई साहब वाली होनी सी। दिल किथे ते दिमाग किथे होना सी। ते ये मैं इन्हां नूं वेख के इंजॉय भी करना वा ते खुश भी होना वा, और इन्हां लोकां नूं साडे अहमदी भाइयों नूं ये ख्याल रखना चाहिए कि वो अहमदी जमात नाल तल्लक नहीं रखते। उन्होंने शिकायत करने तो पहला ये सोच लो कि जिहड़े लोग जमात के खिलाफ बराड़ लाते ने कि वड़ाई साहब की बराड़ उन्हों के मुकाबले ते 1000 दर्जे बेहतर नहीं है कि ये
ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। राजा भाई आपकी आवाज कट रही है, आई थिंक सो आपकी कॉल आ गई है मुझे लगता है। अब आ रही जी राजा साहब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲੇ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ राजा भाई आपकी फिर आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमन भाई जे गाला गाला ना प्रमोट होंदे ना, ते नजरिया जेड़ा है ना वो सब तो ज्यादा प्रमोट होया हुंदा। ये जेड़ा ना ਉਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ना इस ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, 100 ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। फिर ठीक है, फिर जो म्यार दे विच भी फर्क है ना, तो फिर ठीक है। फिर भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जिस बंदे का नाम लेना पसंद नहीं कोई करता ना, जिस दिन आपने भी उसका नाम लेना छोड़ दिया, उस दिन वो खत्म हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात ये चीज ज़हन में रखें कि जब इन लोगों की तस्वीरों वाली ब्रॉड लगती है तो ये खुश होते हैं, ये ज़हन में रखें, क्योंकि आपकी अगर लगे ना तो आप खुश होंगे कि भी बड़ी वैल्यू है मेरी मशहूरी हो रही है, मेरा दुश्मन ही है ना, उसने तो ऐसी तस्वीर ही लगानी है मेरी। बुनियादी तौर पे उसको खुश करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी तस्वीरों वाली, गंदी तस्वीरों वाली, जानवरों पे उसका सर लगा के ब्रॉड लगाना जब तक लगती रहेंगी तब तक वो जिंदा है। जिस दिन वो लगना बंद हो गई, जिस दिन आपने भी उसका नाम लेना छोड़ दिया, जिस दिन आपने भी उसको मिसाल के तौर पे पेश करना छोड़ दिया, उस दिन उसकी मौत है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं है वो ख़त्म हो, आप नहीं चाहते ख़त्म हो। हमारे भाई जो उसकी तस्वीर लगा के उसके ऊपर ब्रॉड लगाते हैं, वो नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि उसको और प्रमोशन मिले, वो और तरक्की करे। जज़ाकल्लाह। मैं तो नहीं चाहता हूँ, अल्लाह माफ करे, मैं तो उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। आप मुझे उनमें ना शामिल करें। मैंने मिसाल दी कि आप कह रहे हैं इज्जत है उसकी, ये अहमद भाई कह रहे थे, अहमद भाई कह रहे थे इज्जत है, मैंने कहा ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। बुरे अंदाज में दे, बुरे अंदाज में भी अगर देगा तो मतलब वैल्यू ही ना मेरी वैल्यू ही ना, अगर मेरी मिसाल दी जाए तो मेरी अच्छी मिसाल कोई देगा। करना चाहिए, हमें लोगों को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। हम नॉर्मली में मामलात पे, इश्यूज पे, उसूलों पे बात करनी चाहिए। हाँ, बहुत कोई ऐसी जरूरत हो जहाँ एक रेफरेंस के तौर पे बात आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जितना नजरअंदाज किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है।
जमात अहमदिया अल्लाह के फजल से इलाही जमात है, ये मामूली बातें हैं। इतने इतने बड़े फितनों का अल्लाह के फजल से मुकाबला किया और ये रियासत का मुकाबला कर रहे हैं, अपने ईमान पे खड़े हैं अल्लाह के फजल से। तो इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? इलाही जमातें आगे बढ़ती जाती हैं और यही दुश्मन के लिए नाकामी और हसरत की बात होती है। एक नीचे हमारी बहन है बिनते हवा, अगर आप ऊपर आके बात करना चाहें तो जरूर आएं, हमें बताएं कि ये कादियानी कहना कैसे गुनाह होता है, कहाँ पे लिखा है, ये हमारे भी इल्म में इजाफा करें। जज़ाकल्लाह। असल में उन्हें पूरी बात की समझ नहीं आई ना, तो वो अपने पास से बना के वो जैसे उन्हें पसंद आया नहीं कोई नहीं, बात ये बोलती है, अच्छा बोलती है, दूसरी ब्राड में मैंने नहीं सुना है। अगर यहाँ पे भी आके अपनी कोई बात करना चाहें तो जरूर रखें हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा एक सवाल था, अगर आप बुरा ना माने तो बज़िद एहतराम आपसे बात कर रहा हूँ। कामयाबी से क्या मुराद है? आपने अभी ये कहा कि जो इलाही जमातें होती हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ने का मकसद होता है कोई मंजिल पाना। इसकी थोड़ी तशरीह करेंगे, कैसे कह रहे हैं आप? जी जज़ाकल्लाह, आप आए तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया और बड़े एहतराम से आपने सवाल पेश किया। राजा साहब आपका जवाब दें। हाँ जी, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि इसके लिए पहले ये समझना चाहिए कि अंबिया का मकसद क्या होता है। तो हमें कुरान करीम से ये पता चलता है कि अंबिया के जो दो बड़े मकसद हैं वो खुदा तआला की वहदानियत तौहीद को कायम करना और अल्लाह बंदे का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना, और दूसरा बंदों के हकूक की बात करना, इंसान की आम जिंदगी में भी अपनी और माशरती जिंदगी में भी। तो इस लिहाज से हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, जिनको हम इमाम महदी और मसीह मऊद समझते हैं, तो जिस तरह कुरान करीम पेशगोई की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ थी, उन्होंने ऐसी एक इलाही जमात की बुनियाद रख दी। तो हम जमात अहमदिया, उनके बाद फिर एक खिलाफत का सिलसिला कायम हुआ अहादीस में जो पेशगोइयाँ थी उसके मुताबिक। तो उसमें हमने यही देखा है कि जो वहाँ से जो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हकीकी तालीम और जो इस मकसद के सबसे बढ़ के पूरा करने वाले थे, वो सिलसिला जारी है मुख्तलिफ ज़राए से। और फिर इस्लाम की हकीकी तालीम का पैगाम जो है जमात अहमदिया आगे से आगे, उसमें कभी कमी नहीं आई, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी इस जो बुनियादी बातें मैंने आपके दो सामने रखी हैं, जो उनके मकासद होते हैं, फिर किताब और हिकमत की तालीम देना, तज़किया नफ्स करना, तो ये सिलसिला जारी है। और फिर एक ये था कि उनके मकासद में कि उनके जरिए से इस्लाम का गलबा दूसरे अदयान पे, तो गलबे से मुराद जो अवलीन मुराद है वो ये है कि जो मिशन है, जो मकसद है, जो इस्लाम की तालीमात है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और हकीकी तालीमात हैं, उनको दलील से दूसरे अदयान पर गालिब करना। तो यही जमात का मकसद, यही इलाही जमातों के मकसद हुआ करते हैं। तो उसमें ना जमात को रोका जा सका है, ना किसी अहमदी को रोका जा सकता है, ना बतौर जमात इस जमात को रोका जा सका। और जमात अल्लाह के फज़ल से अपना मिशन पूरी दुनिया में ये लेके किधर इधर उधर नहीं जाना है। जेडी रिकॉर्डिंग सुन गया ना, इधर तक कर गल ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ था ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ चल रहा है। तो इसका मतलब तो ये मुसलसल एक काम है। हाँ जी भाट साहब दसो। जैसे कि हम नमाज पढ़ते, हमारा मकसद और रिकॉर्डिंग सुनाई है दूसरा एक बारी। ओ मैं सुनी है, मैं उस बंदे ते लानत पा दी है। मैं सुनो, जिन्हें बंदे ने अल्फाज के ने ना वो लानती है, भावें वो मिर्जा कादियानी है, भावें असद दोवां दी असल गल हो रही है। ए पिओ दा तुखम नहीं इनु थल्ले ला, ए पिओ दा ओ मैं ओनु लानती कहना वा। आप जी लड़ो। लोग आ जाया
کرتے ہیں کس لیے نہ غصہ کرنا ہے انہوں سیدھا کہہ کے احمد رضا خان بریلوی نے صحیح پہچانی تھی کہ وہ جو زنا نے انہوں کوئی غیرت نہیں ہے منزل سے نہیں پورے نے شروع یعنی کہ وہ جڑے بلدو زنا دے نال پیدائش ہوئی سی طرح سے بھی جنہاں دے ماں پیو تو الہی جماعتیں اپنے دستور کے مطابق جیسے بالکل آپ نے بات کی وہ اپنے مشن سے ان کا ہوتا جب بھی ہے آپ ایگزام دیتے ہیں اس پہ تو استقامت سے آپ کھڑے رہتے ہیں پاس ہوتے ہیں اور فیل بھی ہوتے ان کے ساتھ ہیں کھڑا ویسے ایگزام جب دیتے ہیں اس میں زیادہ تر پاس ہوتے ہیں تھوڑے بہت فیل بھی ہوتے ہیں مقابلہ وہ بدی اب جو فیل والے ہیں نا انہیں بتایا دوسروں کی طرف سے کیا جاتا ہے ورنہ جو اللہ کے انبیاء آتے ہیں وہ تو ہمدردی کا پیغام لے کے آتے ہیں انسانیت کے لیے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں لیکن تفاسیر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کچھ چیزیں بالکل ہم تفسیر ہماری سات آنکھوں پر ہیں لیکن اس بات کی تفسیر دیکھیں تفسیر بھی ہے نا تفسیر وہ کسی مفسر کی رائے ہو سکتی درست ہے دوسرا مفسر اس سے رد کی تحریک جو ہوتی ہے وہ کسی بھی لحاظ سے پروگریشن کے اندر نہیں شامل ہوتی اس لیے ہمارے پاس کوئی بھی رد کرنے کی تحریک نہیں ہے ہم تبلیغ والی تحریکیں رکھتے ہیں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس راہ میں مقابلے پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان سے ہم مکالمہ کرتے ہیں اتنی سی بات ہے ہمارے پاس کوئی ایسی تحریک نہیں ہے یا کوئی شامل نہیں ہے کہ ہم رد امام مہدی شروع کر دیں رد کوئی رد والی یا وہ سپاہ صحابہ والا کام یا لڑائی جھگڑے طلبہ ہمارا کام ڈاکیے آپ کا کام ایک یا جو بھی تبلیغ کرتے ہیں ان کا کام ایک ڈاکیے کی طرح ہے کہ ہمارا کام ہے کہ پیغام پہنچایا خط منزل پہ پہنچایا